ఆర్థిక బలహీన వర్గాల బిల్లుపై రాజ్యసభలో చర్చ కొనసాగుతోంది. లైవ్ లో చూద్దాం. मैं दूसरे स्पीकर को बुला रहा हूँ। माननीय और हमारे साथ माननीय राकेश जी आप बैठे, मैं दूसरे स्पीकर को बुला रहा हूँ। माननीय हुसैन दलवाई जी, माननीय हुसैन दलवाई जी, माननीय हुसैन दलवाई जी, टीडीपी के रविंद्र कुमार, महज आपकी पार्टी के पास समय अब बचा नहीं है। मिस्टर के रविंद्र कुमार, 1 minute प्लीज, ओनली 1 minute, the mic will automatically go off. Thank you, Vice Chairman, sir. This is an important bill issued which requires a constitutional amendment. This bill introduced before this apex constitutional body without any homework. This bill, it requires any constitutional amendments is required for a report has to be obtained, or it has to be referred to the select committee, or that it has to be studied before introducing the pros and cons of all this issue. Simply because we are raising objections and supporting the bill, government should not take it granted. Our objections should be taken into consideration in order to resolve the hurdles and issues to be come up during the course of implementation of the program. Whatever it may be, the requirement issued for economically backward classes are concerned. It was earlier, the apex court, a 9 judges constitutional bench, has already set aside and shut down the issue on the issue of 10% EBC quota, which was in 1992 itself. So that was not answered to this case. And it is measures even subsequent to that 2006 also, in Nagaraju's case is also the same principle is upheld. Any reservation, not only reservation only to the backward classes, any reservation should be but not exceed 50%. In that case, that there was no answer from the government, in a hurried manner, this was introduced without any debate or so. There are so many things to be answered, including the definition of EBC and other reports are concerned. Statistics also required, how many categories are there, how many reservations are required, how many people are benefited, this all to be studied. There is no study report at all. And subsequently, what happened in this case, only last second of the extended day of this house, they have introduced the bill in a hurried manner. This doesn't serve the purpose of the public except for the purpose of political gimmick. Please conclude. You have got another speaker. However, the Andhra Pradesh state government under the leadership of Nara Chandrababu Naidu has already sent a report to the central government, categorization, 5% categorization of Kapu community. That was not considered. Similarly, there was similar demands from other states. That was also not considered. Without considering the demands made by the states, that was being kept aside. And at the same time... Please conclude. Please conclude. I will invite another speaker now. And at the same time, hurriedly manner... Please conclude. Please conclude. Honorable Hussain Dalwai ji, please, only 3 minutes, you please conclude your speech. We are supporting this... 3 minutes में अपनी बात खत्म The करें. central government must ensure implementation of this process. This आपकी बात नहीं, सिर्फ implementing all the sections of the bill. माननीय हुसैन दलवाई जी की बात रिकॉर्ड पे जाए. 3 मिनट में अपनी बात के पे खत्म. खुशी है कि बीजेपी के लोगों ने रिजर्वेशन की बात रखी है, क्योंकि पूरी जिंदगी उनकी रिजर्वेशन के खिलाफ बातें करने की थी. लेकिन क्या ईश्वर न्याय इस तरह से देता है, वो अच्छी बात है. मैं एक तरह से ये बिल का स्वागत करता हूं कि रामदास जी अभी वहां बैठे हुए हैं. रामदास, आठवले और मैंने महाराष्ट्र में कई जगह पब्लिक मीटिंग लेके कॉन्फ्रेंसेस लेके इस तरह से कुछ न कुछ ऊपर की जाति के लोगों को रिजर्वेशन रखिए, ताकि जिनको नौकरी नहीं मिलती, उनको लगता है दलितों को नौकरी मिलती है इसलिए मुझे नहीं मिलती, ओबीसी को नौकरी मिलती है इसलिए मुझे नहीं मिलती, आदिवासी को नौकरी मिलती है इसलिए मुझे नहीं मिलती. ये जो उनके दिमाग में है वो निकालने के लिए भी ये जरूरी है. ये जो बिल आया है उसका मैं स्वागत करूंगा, लेकिन उसमें आप इनकम का की जो बात की है, कितना इनकम होना चाहिए. गरीब है ना, कौन गरीब? गरीब 8 लाख रुपया सालाना जिसका इनकम है वो गरीब नहीं कहलाता. आप वहां सही माने में पॉवर्टी लाइन के नीचे के गरीब की बात करिए और उनको किस तरह से शिक्षा देना, उनको किस तरह से नौकरी देना,
उसके घर का इंतजाम करना, इस तरह की बात कीजिए, उससे सही माने में न्याय मिलेगा। नहीं तो आज ये देखिए, मैं जानता हूं कि ब्राह्मण समाज में भी गरीब लोग हैं, मराठा समाज में तो बहुत ही गरीब लोग हैं, लेकिन मुसलमानों इतना कोई गरीब नहीं है। मुसलमानों की बात इतने सारे भाषण हुए, बहुत कम लोगों ने उसका जिक्र किया। महाराष्ट्र में रिजर्वेशन के बारे में इसमें हाईकोर्ट में जब मैटर गया तो हाईकोर्ट ने ये कहा कि इस तरह से रिजर्वेशन दे नहीं सकते, लेकिन मुसलमान शिक्षा में पिछड़ा हुआ है, उसको अगर सरकार चाहती है तो उसके लिए सरकार रिजर्वेशन रख सकती है एजुकेशन में, वो भी वहां के सरकार ने नहीं किया। गहलोत जी, मैं चाहता हूं कि आपके इसमें ये रिजर्वेशन 10% तो गलत बात है, ऐसा मुझे लगता है। 10% ने कम से कम 20% तो रखिए। 20% रखेंगे तो कुछ न कुछ उनको न्याय मिलेगा, नहीं तो होगा क्या, मैं आपको बताता हूं। आज बड़े पैमाने पे जो नौकरियां मिलती है कि सबसे ऊपर जो जाति के लोग हैं उनको ज्यादा मिलती हैं। आज ये 10% ही खाली रखेंगे, इसका मतलब उसमें जो गरीब है वही वो 10% लेके जाएंगे। क्योंकि एक बात मैं बोलता हूं आपको कि दलित और ब्राह्मण, इसमें कोई कंपैरिजन हो नहीं सकती। भले दोनों गरीब हैं, या तो दलित का ब्राह्मण से अमीर भी हो सकता है, लेकिन उसका सोशल स्टेटस बहुत ही जरा तीन मिनट हो गए, 3 मिनट हो गए, आपने कुछ हमारे ऊपर प्लीज, ये क्या बात है? 3 मिनट खत्म हुआ, आप बोले कंक्लूड करें। 3 मिनट खत्म हो गए और 3 मिनट समय आपने मांगा था, 3 मिनट पूरे हुए। तो मैं एक बात करता हूं कि कहां न कहां इसके बारे में ये होना चाहिए कि अभी 10% आप बोलते हैं। महाराष्ट्र में मराठा समाज को 16% की जिम्मेदारी ली है सरकार ने। अभी यहाँ सही माने में वो सोशली बैकवर्ड है ऐसा सिद्ध करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर ये होता है, आर्थिक निकष लगाते हो, तो मेरा कहना ऐसा है कि 20% रखेंगे तो जो समाज जो आज रिजर्वेशन के बारे में ये कर रहा है उसको उसका फायदा होगा। और ये करते वक्त सही माने में दूसरी भी बात करिए, स्कॉलरशिप दीजिए, इसके बाद हम घर वापसी के बात में करेंगे। बोलिए माननीय हुसैन दलवाई जी, कंक्लूड करें, मैं दूसरे स्पीकर को बुलाऊंगा। लिंचिंग नहीं करेंगे। ऑलरेडी 4 मिनट हो गए, प्लीज बैठे, प्लीज बैठे। जानबूझ के कहता हूं, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि इनकम टैक्स के लिए आप 2.5 लाख का लिमिट रखें। और मैं दूसरे स्पीकर को अब बुलाऊंगा। माननीय दलवाई साहब, आप कंक्लूड करें, दूसरे स्पीकर को मैं बुलाऊंगा, प्लीज। मिनोरिटी को दो, मिनोरिटी को रिजर्वेशन दो। अगला स्पीकर माननीय अब्दुल वहाब साहब। माननीय अब्दुल वहाब, 2 मिनट में अपनी बात खत्म करें। 2 मिनट में बात खत्म करें। आपकी बात ही रिकॉर्ड पे जाएगी, अब उनकी बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी। अगर आप नहीं बोलेंगे दूसरे स्पीकर को मैं बुलाऊंगा। लेकिन आप बोले अपनी बात कहें, रिकॉर्ड पे उनकी बात नहीं, आपकी बात जाएगी। आप कहें। डेप्यूटी स्पीकर साहब, आप प्लीज प्लीज हम बीच में लड़ता है। मैं ये आश्वासन हमें आप दलवाई साहब बैठे, प्लीज। डेप्यूटी स्पीकर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी सलाम। सलाम सलाम सलाम, ट्रिपल सलाम बोलते हैं आपको, इसके लिए अभी आई हैव स्ट्रांगली अपोज द बिल। मे बी आई एम द फर्स्ट वन टू अपोज स्ट्रांगली। Why? Because of the reasons, because it is illegitimate, illegal in all senses. This is a brutal bill and what is a draconian bill that is killing the spirit of our constitution. Which in 1950, in this house, such a wonderful constitution they made. My leader also, Haidar Millat Muhammad Ismail Sahib and all, Walker Sahib and all, made this constitution with Ambedkar and Jawaharlal Nehru. Now they are killing the spirit of this constitution. I am blaming all this one, now this bill, because of Akhilesh Yadav ji and our Bahan ji, because they made this coalition just before. If they have made this one, tomorrow this bill will not be there. Because they are the culprits according to me. Because I am blaming you people. You have selected the wrong time. If you are selected tomorrow, day after this session,
this bill would not have come. This is the situation actually. And this is the way I am looking at this bill. Because all the problem because of our SP and BSP. And कृपया शांति बनाए रखें आप साहब। नहीं, our point. This is not a poverty eradication. The spirit of the bill, what you call the reservation, Arashan, what you call, I don't know. This word reservation is not the economic criteria at all, in any way. And it is not there. Our Kanun Mantri, what you call, our law minister, he is a very good lawyer and he is a very respectable man. I don't know for what reason he agreed for this overnight decision. So I strongly... I will invite another speaker. Please conclude. Okay, thank you very much for giving me time. Thank you. माननीय रामदास आठवाले जी। डिप्टी चेयरमैन सर, सवर्णों को आरक्षण देने की दिखाई है नरेंद्र मोदी जी ने हिम्मत। सवर्णों को आरक्षण देने की दिखाई है नरेंद्र मोदी जी ने हिम्मत, इसलिए 2019 में बढ़ेगी उनकी कीमत। सवर्णों ने भी थी गरीबी की रेखा, सवर्णों में भी थी गरीबी की रेखा, नरेंद्र मोदी जी ने उसको देखा और 10% आरक्षण देने का ले लिया मौका, और 10% आरक्षण देने का ले लिया मौका, लेकिन 70 साल दिया कांग्रेस ने सवर्णों को धोखा। नरेंद्र मोदी जी का कारवा आगे चला, नरेंद्र मोदी जी का कारवा आगे चला, इसलिए गरीब सवर्णों का हुआ है भला। नरेंद्र मोदी जी के साथ दोस्ती करने की मेरे पास है कला। नरेंद्र मोदी जी के साथ दोस्ती करने की मेरे पास है कला, इसलिए कांग्रेस को छोड़कर मैं बीजेपी की तरफ चला। सवर्णों को आरक्षण देकर मोदी जी ने मारा है छक्का। सवर्णों को आरक्षण देकर मोदी जी ने मारा है छक्का, और 2019 में विजय है उनका पक्का। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी अगर मुझे दे देंगे थोड़ा धक्का, अगर नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी अगर मुझे दे देंगे थोड़ा धक्का, तो मैं कांग्रेस के खिलाफ मारता हूं छक्का। तो आज मतलब ये 124वां अमेंडमेंट बिल जो आ रहा है सवर्णों को आरक्षण देने का, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने आरक्षण दलितों को, आदिवासियों को देने का निर्णय लिया। ओबीसी को आरक्षण मंडल कमीशन के माध्यम से मिला, और मैं हमेशा बोलता था कि दलित पर अत्याचार होने का कारण ये है कि सवर्णों को लगता था कि इनको आरक्षण मिलता है, हमको क्यों नहीं मिलता है। और इसीलिए मैं बार बार मांग करता रहा कि SC ST ओबीसी के आरक्षण को धक्का ना लगाकर सवर्णों को आरक्षण दीजिए, और आज ये बिल आ गया है। बिल की चर्चा एक दिन में होती है। आप लोग बोल रहे हैं कि भाई इतने लेट क्यों लाया, तो चुनाव नजदीक आ गया तो बिल लाने की आवश्यकता थी। और प्लीज चुनाव जीतने के लिए जो भी करना चाहे तुम भी करो, हम भी करते हैं। तुमको जो करना है वो करो, तुमको जितनी टीका करनी है उतनी करो, और अच्छा काम क्या करना है, 2-3 महीने में क्या क्या करना है, इसमें मोदी जी और अमित शाह बहुत होशियार है, और मैं भी होशियार हूँ। लोगों को कैसा कन्विंस करना है, ठीक बात है। अभी 3 राज्यों में हार गए, 15-15 साल छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में सरकार थी,
लोगों को थोड़ा बदल करने की भावना होती है। और राजस्थान में 5 साल के बाद एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, ऐसा होता ही था, तो वो बदल होना ही था। लेकिन तो भी बीजेपी ने बहुत बड़ी कांटे की टक्कर दे दी है। आपको पूरी मेजोरिटी नहीं मिली है। आप लोग बोल रहे हैं कि भाई 2019 में ये नहीं आएगी वो नहीं आएगी, तो आप कैसे आएंगे? हम नहीं आएंगे तो आप कैसे आएंगे? मतलब आएंगे मतलब तुम्हारे 3 मिनट हो रहे हैं। पार्टी और सपा और बसपा एक साथ आए हैं। 3 मिनट हो रहे हैं प्लीज। सपा बसपा एक साथ आए, अच्छी बात है कि ये दोनों एक दूसरे के तो दुश्मन थे लेकिन अभी मित्र बन गए हैं। शुरू में कांशीराम जी और मुलायम सिंह यादव जी एक साथ आए थे, उन्होंने एक साथ रहना चाहिए था, लेकिन वो आपस में एक दूसरे के खिलाफ से चले गए। अभी साइकिल और हाथी एक साथ आया है। अभी साइकिल पर हाथी बैठता है कि नहीं मतलब जो भी है, लेकिन आप लोग आए गए, ठीक बात है। आप कोशिश करो। उत्तर प्रदेश में आप लोग नागर जी उत्तर प्रदेश में आप लोग एक साथ आए, अच्छी बात है, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी बीजेपी के साथ रहेगी। अगर बसपा अगर सपा के साथ चली गई है तो उत्तर प्रदेश में रिपब्लिकन पार्टी बीजेपी के साथ रहेगी। एक जमाना था कि हमारे आरपीआई की 4 मंत्री थे, कंक्लूड करना समय सिंबल हमारा था, वो हाथी सिंबल आपके पास आया है और हाथी मेरे तरफ देख रहा है, उनको उधर खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है और उनको लग रहा है कि भाई मंत्री बन गए, इधर थोड़ा खाने के लिए मिलेगा। देखते आपकी पार्टी बड़ी है, मेरी पार्टी छोटी है। हमारी पार्टी मिश्रा जी, आपकी पार्टी बड़ी पार्टी है। और दलित और ब्राह्मणों का जब बहुजन समाज पार्टी ने ब्राह्मणों का विरोध किया था, तब मैं बोलता था कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ब्राह्मण जाति का विरोध नहीं किया है, ब्राह्मण्यवाद का विरोध किया है। और इसीलिए मतलब आप लोग अभी आप सब लोग एक साथ आए हैं, तो अच्छी बात है। आप लोग कोशिश करो। आप वाले जी कृपया अपनी बात खत्म करें। मैंने आप लोग बीजेपी के साथ मायावती जी के बारे में हमको आदर है। हमारे समाज की बहुत बड़ी हमारी बहन है, बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटर है, 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन मिश्रा जी 3 बार बीजेपी का सपोर्ट लेकर मायावती मुख्यमंत्री बनी। माननीय आठवाले जी इधर देखें, माननीय आठवाले जी चेयर की तरफ देखकर बोले और बात खत्म करें। आपकी तरफ भी देखता बात खत्म करें। नहीं मैं आपकी तरफ बात खत्म करें। थोड़ा इनकी तरफ देखना पड़ेगा मुझे। कृपया अपनी बात खत्म करें। समय मतलब नहीं, ठीक बात है। तो मायावती जी 3 बार बीजेपी के सपोर्ट से मुख्यमंत्री बनी थी, तो इसीलिए मुझे लगता है कि भाई दलित विरोधी का नारा देना ठीक नहीं है। आप लोग दूसरा आरोप कर दीजिए। आज बीजेपी दलितों की है, बहुजनों की है। ये बिल में अल्पसंख्यकों भी मतलब यहाँ ले लिया है। कृपया कंक्लूड करें। हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, कंक्लूड करें। कृपया कंक्लूड करें, अपनी बात कंक्लूड करें। कृपया आठवाले जी आप चेयर की ओर देखकर अपनी बात खत्म करें। अपनी बात खत्म करें। अपनी बात खत्म। कृपया अपनी जगह बैठे। आप चेयर की ओर देखकर एड्रेस करें, अपनी बात खत्म करें। जो भी मतलब मैं दूसरे स्पीकर को बुलाऊंगा। कृपया कंक्लूड करें। दूसरे स्पीकर को मैं बुलाऊंगा। कृपया अपनी जगह। अरे बीजेपी को आप मनुवादी समझते हो। आठवाले जी अपनी बात, सत्ता में थे। आठवाले जी अपनी बात खत्म करें। समय पर्याप्त हो गया। मैं दूसरे वक्ता को बुला रहा हूँ। श्री ऑनरेबल टीजी वेंकटेश, 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट। आपकी पार्टी समय ले चुकी है, लेकिन मैं पूरा आपको 1 मिनट का समय देता हूँ। कृपया बैठ। आप इनके साथ आपकी बात हो, कृपया बैठ। और अभी आप कृपया बैठ जाए। मिस्टर टीजी वेंकटेश, अब आपकी बात सिर्फ रिकॉर्ड पे जाएगी। कृपया बैठ जाए। प्लीज स्पीक, प्लीज। चंद्रबाबू कृपया आप बैठ जाए। हो गया, आपने बहुत समय लिया, आप बैठ जाए प्लीज। फॉर प्रोवाइडिंग मिस्टर टीजी वेंकटेश, कोटा। सिर्फ मिस्टर टीजी वेंकटेश की बात जारी है रिकॉर्ड पे। प्लीज आप बैठ जाए, किसी और की नहीं। प्लीज बैठ जाए। उनकी बात रिकॉर्ड पे जा रही है। टीजी वेंकटेश आप बोले प्लीज स्पीक। यू हैव गॉट ओनली 1 मिनट। प्लीज स्पीक, अदरवाइज आई विल इनवाइट अदर स्पीकर। आपकी बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है। माननीय आठवाले जी, आपकी बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है ना। आपकी सिर्फ आपकी बात रिकॉर्ड पे जा रही है। मिस्टर टीजी वेंकटेश, प्लीज। हमारा 1 मिनट है साहब।
कोई आप बोले आप बोले आप बोले आप बोले But central government has not taken आप बोले seriously and kept मिस्टर the टीजी state government वेंकटेश proposed in मिस्टर cold टीजी storage. वेंकटेश मिस्टर टीजी वेंकटेश कृपया बैठ करना बोले आठ वाले जी कृपया शांति रखें कृपया class economically backward मिस्टर टीजी वेंकटेश प्लीज creating प्लीज corporations like Brahmin Corporation, Vaishya Corporation, Kapo Please, Corporation, कृपया Valmiki Corporation, and all कृपया these आपस things में बातचीत is a बंद must करें of its मिस्टर kind टीजी वेंकटेश in the country. बैठे In spite of state is deficit budget, the state government is providing all budgetary support. But the request from us is that central पे जा रही है, government Mr. should T.G. also Venktesh. give this type of corporations budgetary supported. Because everybody well aware that our state was a deficit budget and the state has been divided without applying the mind. Unilaterally state has been divided. As per the constitution, everyone should get the benefit from the government irrespective of caste and religion. Reservation benefits should be given to all categories of people, including upper classes like Brahmins, Baniyas, Muslims. Sir, your time is Vaishyas, over. 2 minutes. It's Rajis, over. and everybody. It's over. It's all over. this- Please conclude. It's over. You have taken already 2 1 minutes. second I will take. Please, please, please. Sir, one of my associated injured and he has gone to the, because our place is border state of Karnataka and Telangana. So one fellow has injured and he has gone to the hospital, the adjacent state of hospital. And they asked them, which state you belongs to that one? Which card you are having, whether you have a white card or whether you are a BC, SC or OC, like this type of questions are coming from whenever the fellows are injured and going to other states, other hospitals. This has to be given a solution, sir. When my associate animal Please has been conclude. injured, Now it's already 3 minutes. my I will invite associate another animal has speaker. been injured and he has taken to the other state hospital. They have not questioned that which state belongs to this animal, which Please whether white conclude. or black animal they have treated. Now I will So invite the Sri people are Joseph K. Mani. treating Sri worse Joseph than K. Mani. animals. Please. Worse than 2 animals. minutes, sir. So Only 2 ultimately minutes. हम लोगों ने बात से ऑलरेडी 1.5 घंटे अधिक समय ले लिया है. This is a long-awaited social justice towards the economically weaker section of the society. I support the bill in its spirit and hope that it will be utilized for the benefit of the target group it is meant for. Positive affirmation towards the weaker section of the society will bring them at par with other privileged classes. Urbanization has also created the urban poor.